बच्चों जय हिंद। बच्चों मेरा नाम है के चौहान और अपने इस चैनल का नाम है कपूर सिंह स्टडी। तो आज हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं चैप्टर 1 का रिलेशंस एंड फंक्शंस पार्ट 2। तो अभी हम देखेंगे कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होती है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक इज इक्विवेलेंस रिलेशंस। A relation which is RST means a relation which is reflexive, symmetric and transitive is called equivalence relation. For example, take the case of a set A in which there are elements 1, 3, 5. We consider a relation which is 1, this is also a set 1, 3, 5. 1, 1, 1, 3, 1, 5, then 3, 1, 3, 3, 3, 5, then 5, 1, 5, 3, 5, 5. This relation is, as we have seen earlier, this relation is called universal relation. And second relation is the identity relation. Identity relation. In these elements 1, 1, 3, 3, 5, 5. तो ये यूनिवर्सल रिलेशन है और ये आइडेंटिटी रिलेशन है। तो हम ये चेक कर सकते हैं कि जो ये रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। सिमिलरली ये जो रिलेशन है ये भी रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। तो ये दोनों ही रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज इक्विवेलेंस क्लासेस। इक्विवेलेंस क्लासेस का मतलब क्या है वो देखिए। मान लो एक हमारे पास सेट है ए एक सेट है जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं और इस सेट के एलिमेंट्स को रिलेट करने वाली एक रिलेशन है जो कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन इस सेट ए के डिफरेंट एलिमेंट्स हैं इनको दो हिस्सों में बांट देती है। इस सेट के दो हिस्से बना देती है यह इक्विवेलेंस रिलेशन। और वो दो हिस्से कौन कौन से हैं? A1 एंड A2। These are subsets of A. A1 and A2 are subsets of A। और इनमें कंडीशन यह है कि जो A1 के एलिमेंट्स हैं वो आपस में रिलेटेड हैं थ्रू दिस रिलेशन। A2 के जो एलिमेंट्स हैं वो भी आपस में रिलेटेड हैं थ्रू दिस रिलेशन। बट द एलिमेंट्स ऑफ A1 और एलिमेंट्स ऑफ A2 आर नॉट रिलेटेड टू each other. And second is that set A1 and set A2 are disjoint sets, so that this comes out to be 5. They are disjoint sets
and also A1 union A2 is equal to A. It means A1 and A2 are the parts, two parts of the set A. Now this A1 and A2 are also called equivalence classes. Suppose the first element of A1 is 1. So this equivalence class will be denoted by equivalence class containing 1 will be denoted by 1 bracket, and equivalence class A2 whose lowest element is first element is 2, this will be denoted by the equivalence class containing 2, and this will be represented by 2 bracket. Now in this concern, let us take concrete example of equivalence classes. Example 1. Consider a set A equal to set of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. This is the set of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And there is a relation defined as relation between A and B such that A minus B is divisible by 2. And A belongs to A and B also belongs to A. So this is the set builder form of this relation. Set builder form. Set of A and B, A minus B is equal to 2R. This is also set builder form, 2R, where R is some integer and A belongs to A and B also belongs to A. So here this relation splits this set in two parts. The first part will be equal to set of 1, 3, 5, 7, and A2 part will be 2, 4, 6, 8. So here we see that elements of A1 are related among themselves through this equivalence relation. Elements of A2 are also related among themselves through this relation. But no element of A1 is related to any element of A2. And A1 and A2 are disjoint sets. And also A1 union A2 is equal to A. A1 and A2 are the parts, subparts of the set A. Means A1 is subset of A and A2 is also subset of A. So these A1 and A2 are termed as equivalence classes. So equivalence class containing 1, equivalence class containing 1, which is A1, is denoted by A1 bracket. Equivalence class containing 1.
Similarly, equivalence class containing 2, which is A2, is 2 here in this example, and with this relation, equivalence class containing 1 is denoted by 1, and equivalence class containing A2 is denoted by 2. Now let us take another example of equivalence classes. Example 2. Here again we consider the set A given by 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and a relation defined as equivalence relation defined as set of AB, so that A minus B is divisible by 3, and here again A belongs to A and B belongs to A. A minus B here is divisible by 3. So this relation can be also written as AB, such that A minus B is equal to 3R. 3R, where R is some integer. R is some integer. And A belongs to A, B belongs to A. So here, this set splits in 3 parts, 3 subsets. Here A1, the first subset will be 1, 4, 7. A2 will be set of 2, 5, 8. And A3 will be 3, 6. So A1, equivalence class A1 will be the set of elements 1, 4, 7. A2, the equivalence class will be the set of 2, 5, 8. And A3 will be the set of elements 3 and 6. So equivalence class A1 containing 1 is denoted by 1 bracket. So this is the equivalence class containing 1. Similarly, equivalence class A2 containing 2 will be denoted by 2 bracket, and equivalence class A3 containing 3 will be denoted by 3. Here again conditions are that elements of A1 are related to each other, elements of A2 are related to each other, elements of A3 are also related to each other, but no element of A1 is related to any elements of A2 and A3. Similarly, no element of A2 is related to any element of A1 and A3, and any element of A3 is not related to any element of the elements of A1 and A2. And also here A1 intersection A2 intersection A3 is equal to 5, and A1 union A2 union A3 is equal to A. It means here
A1, A2, A3 are disjoint subsets of A, and A1, A2, A3 are parts of subparts of A. So these were the equivalence classes containing 1, equivalence class containing 2, equivalence class containing 3. Now there are 3 theorems concerning the equivalence relations. Theorem 1. If R and S are two equivalence relations, then R intersection S is also an equivalence relation. If R and S are equivalence relations, then R intersection is also an equivalence relation. Theorem 2. If R and S are two equivalence relations, then R union S may or may not be the equivalence relation. Theorem 3. If R is a equivalence relation, R is an equivalence relation, then R inverse will also be an equivalence relation. Will be an equivalence relation. So these are the 3 theorems, लेकिन इन थ्योरम्स का हम प्रूफ नहीं करेंगे यहाँ. आगे चलते हैं. टाइप्स ऑफ फंक्शंस. फंक्शंस के बारे में हम पहले देख चुके हैं 11th क्लास में कि अगर एक फंक्शन is from A to B, a function is from A to B where A is one set and B is another set. यहाँ कुछ एलिमेंट्स हैं, एनी एलिमेंट्स. तो फंक्शन वो खास रिलेशन है जिसमें जो डोमेन के एलिमेंट्स हैं सारे कवर हों, और जो कोडोमेन के एलिमेंट्स हैं सारे कवर हो भी सकते हैं, सारे कवर ना भी हो, कोई बात नहीं. लेकिन each and every element of the set A, which is the domain of the function,
is related to some elements of B which is the codomain. Now अब हम देखेंगे कि फंक्शंस कितने किस्म के हैं. फर्स्ट उसको कहेंगे वन फंक्शन. इसको हम इंजेक्शन भी कहते हैं. इंजेक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन. सेकंड ऑन टू फंक्शन. ऑन टू फंक्शन. इसको हम सर्जेक्शन भी कहते हैं. सर्जेक्शन. थर्ड टाइप ऑफ फंक्शन, बाकी सारी फंक्शन इन्हीं से निकली हुई हैं. वन फंक्शन ना हो तो मैनी वन फंक्शन हो जाएगी. मैनी वन फंक्शन. फोर्थ, और कोई फंक्शन ऑन टू ना हो तो उसको कहेंगे इन टू फंक्शन. और यदि कोई फंक्शन वन भी हो और ऑन टू भी हो तो वो होगी वन ऑन टू फंक्शन. और इस फंक्शन को हम कहेंगे बाइजेक्शन, क्योंकि ये भी इन्वॉल्व है, ये भी इन्वॉल्व है. बाई दो स्पेशल फंक्शन यानी इंजेक्शन और सर्जेक्शन का मिलान है वो, तो ये होगी बाइजेक्शन. और छठी किस्म की जो फंक्शन है वो होगी मैनी वन ऑन टू फंक्शन. मैनी वन ऑन टू फंक्शन. अब इनमें से कुछ फंक्शन एक एक करके हम डील करेंगे विद सम एग्जांपल्स. तो पहली होगी हमारी वन फंक्शन. वन फंक्शन एक से एक रिलेशन बनाएगा. एक एलिमेंट से एक ही एलिमेंट के साथ रिलेशन होगा. जैसे डोमेन, the different elements of domain are related to different elements of the codomain. एक से एक कुश्ती होगी यहां पर, दो एक से नहीं होगी, ना एक दो से होगी. तो वन जैसे यहां पर लीजिए आप, एक सेट ये है, दूसरा सेट ये है, और एक सेट के एलिमेंट ये हैं, दूसरे सेट के एलिमेंट ये हैं. तो इनका आपस में इस तरह से रिलेशन है कि एक का रिलेशन एक से ही होगा. एग्जांपल लेते हैं यहां. नाउ अब हम एक चीज और देखते हैं कि ये टेस्ट कैसे करें कि कोई फंक्शन वन है या नहीं है. तो टेस्टिंग के लिए दो तरीके हैं. एक तो तरीका यह है कि मान लो फंक्शन का जो डोमेन है उस डोमेन में दो एलिमेंट्स हैं, x1 एंड x2, और उन एलिमेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं f(x1) और दूसरे एलिमेंट्स के लिए भी f(x2), और ये हम एज्यूम करते हैं
कि ये वैल्यूज जो है ना फंक्शन की इक्वल हैं दोनों एलिमेंट्स के लिए, x1 एंड x2 के लिए। अगर यहाँ से चलते हुए हम यहाँ पहुँच जाएं कि x1 इज इक्वल टू x2, तो फिर हम कहेंगे कि जो कंसर्न फंक्शन है वो 1 होगी, 1 होगी। दूसरा अल्टरनेटिव मेथड ये भी है कि हम अगर x1 नॉट इक्वल टू x2 से शुरू करें कि दो एलिमेंट से जो फंक्शन से हैं डोमेन में x1 और x2 डिफरेंट हैं, और हम इस नतीजे पर पहुंच जाएं कि f(x1) is not equal to f(x2), then we can say that the function is 1 इन दो मेथड में ये इजी मेथड है, यहाँ इसी को हम यूज करेंगे कि यहाँ से शुरू करो और यहाँ पहुंच जाओ तो फंक्शन 1 हो जाएगी। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज द फंक्शन इज रियल इन रियल नंबर, फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, यानी डोमेन इज सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड को डोमेन इज आल्सो सेट ऑफ रियल नंबर्स। और फंक्शन की डेफिनेशन ऐसे है कि f(x) इज इक्वल टू x³ प्लस 3। तो इस फंक्शन को देखते हैं कि ये 1 है या नहीं है। हम ये मेथड यूज करेंगे जैसा कि पहले मैंने बताया। तो लेट देयर बी टू सेपरेट एलिमेंट्स x1 एंड x2 in the domain, then we start from here, f(x1) is equal to f(x2), और देखते हैं हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं। यहाँ f(x1) की वैल्यू क्या है, x1³ प्लस 3, और f(x2) की वैल्यू क्या है, x2³ प्लस 3, और यहां से हम निकालते हैं 3 कैंसिल हो गए, तो x1³ is equal to x2³ and this gives us that x1 is equal to x2। पहुंच गए इस रिजल्ट पर। इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है ये 1 फंक्शन है। नाउ वी कम टू onto function, onto function। onto फंक्शन को इस प्रकार से डिफाइन करेंगे हम कि मान लो फंक्शन का जो डोमेन है वो ये है और को डोमेन ये है, इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, और ये फंक्शन है which relates the elements of A to the elements of B। Now on to function वो फंक्शन है कि जिसमें को डोमेन का हर एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट का क्या होना चाहिए, इमेज होनी चाहिए, कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द को डोमेन शुड बी द इमेज ऑफ सम एलिमेंट इन द डोमेन। तो मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जो ये को डोमेन है इसका हर एलिमेंट कवर होना चाहिए, कोई एलिमेंट छूट ना जाए। नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल। Prove that the function f(x) from n to n defined by
fx is equal to x square is not 1 on 2. Solution. First we shall prove first part, then second for 1. Let x1, x2 be two elements in the domain of the function. Then fx1 is equal to fx2 implies that x1 square is equal to x2 square. This implies that x1 is equal to plus minus x2. Now natural numbers are not negative. Therefore, natural numbers are not negative. Therefore, minus x2 is not possible. Therefore, we neglect minus x2, and therefore we get x1 is equal to x2. This implies that the function is 1. So the function is 1. Now for on 2. Let y is equal to fx, where y belongs to the codomain, where y belongs to codomain, which is n, set of natural numbers. Therefore, y is equal to x square, and this implies that x square is equal to y, and x is equal to under root y plus minus under root y. Now, out of the set of natural numbers, we take any value, say y is equal to 3. Let y is equal to 3. Therefore, we get x is equal to plus minus under root 3. And so, x is equal to under root 3 or minus under root 3. But these values
don't lie in the set of natural numbers, and therefore corresponding to 3 in codomain, there is no value in the domain which is related to y is equal to 3, and therefore function is not onto. So function is not onto. So here function is 1 1, and here function is not onto. From 1 and 2, we get that the given function is not 1 1 on 2. We get given function is not 1 1 on 2. Let us take some other example. एक फंक्शन ऐसे है which is given by the ordered pairs -1 3 1 3 2 4 4 6. ये फंक्शन है। तो इस फंक्शन को हम टेस्ट करना चाहते हैं कि या ये जो फंक्शन है ऑन टू है या नहीं है। तो यहां पर इस फंक्शन के लिए डोमेन क्या है? सेट ऑफ -1 1 2 एंड 4। तो डोमेन हो गया यहां पर, डोमेन हो गया सेट ऑफ -1 1 2 4, और कोडोमेन क्या हो गया? कोडोमेन ये हो गया सेकेंड एंट्रीज के जो सेट हैं 3 4 6, ये कोडोमेन हो गया। तो अब आप देखिए कि ये जो फंक्शन है ये ऑन टू है या नहीं है, देखना चाहते हैं ना हम कि क्या डोमेन का हर एलिमेंट कवर हुआ है। 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। तो ये जो फंक्शन है ये ऑन टू फंक्शन है। अब एक और ध्यान देने योग्य बात है यहां ऑन टू फंक्शन के लिए कि ऑन टू फंक्शन में इन ऑन टू फंक्शन कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, कि फंक्शन का कोडोमेन जो है, कोडोमेन यानी ये चीज शुड बी इक्वल टू द रेंज। अब रेंज देखिए यही है, 3 है, 4 है, 6 है, ये सेट ऑफ एलिमेंट्स 3 4 6 इज द रेंज। अब एक और एग्जांपल लेते हैं ऑन टू फंक्शन का। ये एक फंक्शन ऐसे है जिसका डोमेन 2 3 4 और कोडोमेन 8 27 64 एंड 125 है। डोमेन के एलिमेंट्स हैं 2 3 4 और कोडोमेन के एलिमेंट हैं 8 27 64 125। तो हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो फंक्शन है ये ऑन टू फंक्शन है या नहीं है।
and this function is given by f(x) is equal to x cube, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64 और ये किसी का क्यूब नहीं है। तो हम यहां पर ये लेंगे कि f(x) इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब एक केस ऐसा लेते हैं जिसमें y की वैल्यू 125 है। टेक y इज इक्वल टू 125, तो इसमें भरेंगे तो क्या हो जाएगा 125 इज इक्वल टू एक्स क्यूब, या एक्स क्यूब इज इक्वल टू 125। तो x किसके बराबर आ गया 125 क्यूब रूट, और ये आ गया 5, x की वैल्यू 5 आ गई। अब कोडोमेन में ये जो एलिमेंट है 125, इसके कॉरस्पॉन्डिंग डोमेन में x की वैल्यू आई 5। क्या यहाँ 5 है? कोई नहीं है, इसलिए 125 का तो कोई साथी नहीं मिला इसमें, कि ऐसा कोई एलिमेंट इसमें नहीं है जिसकी इमेज 125 हो। ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, तो दिस डज नॉट बिलोंग टू द डोमेन। ये 5 जो ना डोमेन में है ही नहीं, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट ऑन टू। अब हम एक ऐसी फंक्शन लेते हैं जो कि 1 1 ऑन टू 1 1 ऑन टू के बारे में जानकारी देंगे। 1 1 ऑन टू का मतलब है कि एक फंक्शन विच इज 1 1 एज वेल एज ऑन टू, दो का मिलान है यहाँ पर 1 1 एंड ऑन टू का। ए फंक्शन विच इज 1 1 एंड ऑल्सो ऑन टू इज कॉल्ड 1 1 ऑन टू फंक्शन, जिसको हम बाइजेक्शन भी कह रहे हैं। बाइजेक्शन, या दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव। तो फंक्शन का टेस्ट करते हैं हम एग्जांपल के रूप में। डिसाइड इफ द फंक्शन -7x is 1 1 on 2 and this function is from z to z, integers to integers, यानी domain of the function is set of integers and codomain is also set of integers z। तो इसको इस तरह से डिसाइड करेंगे हम। for 1 1, तो let there be two elements x1 x2 belonging to the domain, and domain क्या है z, set of z, set z। now f(x1) is equal to f(x2), 1 1 टेस्ट करने के लिए यही तो मैंने बताया था कि f(x1) इज इक्वल टू f(x2) से स्टार्ट कर दो और पहुंच जाओ वैल्यू पर। तो f(x1) की वैल्यू क्या हुई -7x1 और f(x2) की वैल्यू -7x2। अब माइनस माइनस कट गया, 7 7 कट गए, तो यहां से हमें मिला x1 इज इक्वल टू x2। तो ये कंफर्म करता है कि ये जो गिवन फंक्शन है ये 1 1 है। देयरफॉर fn फंक्शन इज
1 1। अब हम देखना चाहते हैं कि ये ऑन टू भी है कि नहीं। सेकेंड पार्ट, फॉर ऑन टू, फॉर ऑन टू। अब ऑन टू के लिए क्या करें हम कि मान लो वही बात है कि y इक्वल टू एफ एक्स है, वहां से शुरू करना चाहिए ऑन टू के लिए। y इक्वल टू एफ एक्स और y की कोई वैल्यू सोच लो, कोई भी वैल्यू सोच लो। y की वैल्यू मान लो 1 है, क्योंकि 1 इंटीजर है। 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 4। बस सिंपल केस हम लेना चाहते हैं, हम अपनी समस्या का सोल्यूशन कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाएं भाई। तो y की वैल्यू 1 ले लो, ठीक है। y इक्वल टू 1, देयरफॉर दिस गिव्स 1 इज इक्वल टू, और एफ एक्स क्या होगा, -7x, -7x। y की वैल्यू तो 1 होगी और एफ एक्स की क्या वैल्यू है, -7x। तो यहां से x क्या निकला, x इज इक्वल टू -1/7। x कम्स आउट टू बी -1/7। क्या ये इंटीजर है, क्या ये वैल्यू z को बिलोंग करती है, नहीं। तो दिस डज नॉट बिलोंग टू z विच इज द डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन। इसका क्या मतलब है कि अगर को डोमेन में हम एलिमेंट 1 लें तो इसके कोरस्पॉन्डिंग ये आया, ये तो इंटीजर नहीं है, तो इसका मतलब 1 के कोरस्पॉन्डिंग डोमेन में कोई इंटीजर अवेलेबल नहीं है। तो 1 तो ये खाली रह गया, इसका कोई दोस्त नहीं मिला डोमेन में, तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं हुई, नहीं हुई। देयरफॉर a function is not on to। तो यहां तो थी फंक्शन इज 1 1 और इसमें मिला 1 के फंक्शन इज नॉट ऑन टू, ये सेकंड फैक्ट निकला। तो फ्रॉम 1 and 2 we can say that a function is not 1 1 on 2। भाई 1 1 तो है लेकिन ऑन टू तो नहीं है, इसलिए ये फंक्शन 1 1 ऑन टू नहीं है। अब हम एक फंक्शन कंसीडर करते हैं मैनी वन ऑन टू फंक्शन, मैनी वन ऑन टू फंक्शन। मैनी वन ऑन टू फंक्शन। सपोज द फंक्शन इज given by -1 4 1 4 2 5 3 6, ये फंक्शन है। तो इस फंक्शन का डोमेन क्या है, सेट ऑफ फर्स्ट एंट्री -1 1 2 3, ये डोमेन है। और को डोमेन सेट ऑफ सेकंड एंट्रीज 2 4 6, सेट ऑफ 2 4 6। तो ये को डोमेन हो गया। तो ये जो फंक्शन है मैनी वन फंक्शन है, क्योंकि दो एलिमेंट्स डोमेन के एक ही वैल्यू रखते हैं को डोमेन में, तो ये मैनी वन फंक्शन हो गया, मैनी वन फंक्शन हो गया। यहाँ अलग अलग है, कोई बात नहीं। तो ये फंक्शन इस किस्म से होगी,
ये सेट ए है मान लो, ये सेट बी है। तो -1 1 2 3 4 5 6। तो -1 और 1 की वैल्यू जो है ना कॉरस्पॉन्ड करती है 4 को, और 2 5 को, और 3 6 को। तो ये हो गया मैनी वन फंक्शन होगी। दिस इज मैनी वन फंक्शन कि -1 और 1 की एक ही इमेज है 4। तो दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड मैनी वन फंक्शन। तो एक नोट करने वाली चीज ये है कि अगर फंक्शन की शेप इस तरह से है, ऐसे कि ये एक सेट के एलिमेंट हैं, ये दूसरे सेट के कोई भी एलिमेंट है, ये -1 और 1 है, और ये 4 है यहाँ पर, बाकी दूसरे भी हैं। तो इस किस्म की शेप हो तो इस किस्म की जो फंक्शन है वो मैनी वन फंक्शन है। लेकिन अगर इस तरह से हो, ऐसे हो, इस किस्म से हो, तो क्या कहना चाहिए? ये मैनी वन है या नहीं है? अरे मैनी वन तो है ही नहीं, बल्कि ये कोई फंक्शन ही नहीं है। फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है? फंक्शन की डेफिनेशन कहती है कि जो डोमेन के एलिमेंट्स हैं, हर एक एलिमेंट्स, उसकी केवल यूनिक इमेज होनी चाहिए, यानी एक इमेज होनी चाहिए कोडोमेन के अंदर। यहाँ देखिए, इसकी इमेज एक ही है, इसकी इमेज एक ही है, लेकिन इसकी इमेज दो होगी कोडोमेन में। तो ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन की डेफिनेशन को ही मान नहीं रहा। तो दिस इज नॉट ए फंक्शन। तो जब फंक्शन नहीं है तो मैनी वन मैनी का कोई सवाल पैदा नहीं होता। मैनी वन फंक्शन, वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन तभी बनेगी ना जब कोई फंक्शन होगी। यहाँ तो कोई फंक्शन ही नहीं है। अब हम एक ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जिसमें मैपिंग दे रखी है और हमने डिसाइड करना है कि ये किस किस्म की फंक्शन है। वन है, मैनी वन है, ऑन टू है, नॉट ऑन टू है, क्या है? तो एक एग्जाम्पल ऐसा ले रहे हैं हम। मान लो एक फंक्शन ऐसे है, दिस इज फंक्शन f1। एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये 1 2 3 4 5 है। ये है 11 12 13 14 15। तो ये बताओ ये फंक्शन कैसी है? दूसरा केस हम लेंगे। तो मान लो एक फंक्शन ऐसे है, ये f2 है मान लो, फंक्शन f2 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और एलिमेंट्स इसमें हैं 11 12 13 14 15 16। ये फंक्शन है। और तीसरी फंक्शन है, ये ए सेट है, ये बी है, इधर ये सेट है, ए है, ये सेट बी है। तीसरी फंक्शन हम जैसे ले रहे हैं, देयर आर टू सेट्स ए एंड बी, और ये थर्ड फंक्शन है, थर्ड फंक्शन।
1 2 3 4 5 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 11 12 13 14 15 16। तो इस फंक्शन में रिलेशन ऐसे है कि 1 का रिलेशन 2 के साथ 12 के साथ है, 2 का 14 के साथ है और 4 का 16 के साथ है, 3 का 11 के साथ है और 5 का 15 के साथ है। तो ये देखना है कि ये कैसी फंक्शन है। देखते हैं। और चौथी फंक्शन ऐसी होगी ए बी। ये फंक्शन हमारी फोर्थ है। 1 2 3 4 5 11 12 13 14 15 16। और फंक्शन ऐसे है ये रिलेशन दे रहे हैं एरो डायग्राम्स। और एक और लेते हैं। ए सेट, बी सेट और 1 2 3 4 5 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 11 12 13 14 15 16 17। और ये फंक्शन हमारी F5 है, F5। और ये फंक्शन हम इस प्रकार से डिफाइन करते हैं कि ये 3 का ये है, 4 के साथ ये है, 5 के साथ ये है। और एक फंक्शन और कंसीडर कर रहे हैं, F6। ए और बी सेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 11 12 13 14 15 16 17। तो फंक्शन इस प्रकार से है ये। Suppose this is related to this, 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 this is related to this। तो ये फंक्शन है F6। तो हमने डिसाइड करना है कि ये जो मैपिंग है ये किस किस्म की फंक्शन को डिनोट करते हैं। तो F1 को देखते हैं, क्या ये 1 1 है? यस, डिफरेंट एलिमेंट ए के डिफरेंट एलिमेंट बी से रिलेटेड हैं, तो ये 1 1 है। और ऑन टू भी है, क्योंकि कोडोमेन है इसका, हर एलिमेंट कवर किया गया है। तो ये फंक्शन होगी हमारी 1 1 ऑन टू। ये फंक्शन 1 1 ऑन टू है। दूसरी देखते हैं, इसके बारे में आपका क्या विचार है? 1 1 है
लगती तो है 1 1, और ऑन टू तो लगती नहीं है। अब ये देखो ये फंक्शन भी है कि नहीं है? फंक्शन नहीं है ये, क्योंकि 4 और 5 एलिमेंट डोमेन के रिलेशन में ही नहीं है। एवरी एलिमेंट शुड बी रिलेटेड। तो ये फंक्शन नॉट ए फंक्शन, इट इज नॉट ए फंक्शन। तो जब फंक्शन नहीं है तो ऑन टू और इन टू वगैरह का सवाल पैदा नहीं होता। अब हम देखते हैं F3। ये तो भाई फंक्शन है, देखो हर एलिमेंट कवर किया गया है, और इसका हर एलिमेंट कवर नहीं किया गया, 13 खाली रह गया, तो ये ऑन टू तो है नहीं। अब और देखो 1 1 ऑन टू नहीं है, 1 1 तो है, ये 1 1 तो है, हर एलिमेंट डिफरेंट एलिमेंट को डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट से रिलेटेड है। तो ये 1 1 तो है, लेकिन ऑन टू नहीं है। और जो फंक्शन ऑन टू ना हो उसको क्या कहेंगे? इनटू। तो ये 1 1 इनटू फंक्शन है, 1 1 इनटू ये 1 1 इनटू होगी। और ये कैसी है? फंक्शन तो ये है, ये ऑन टू नहीं है, 12 खाली रह गया कोडोमेन में, और 1 1 है, 1 1 भी है ये ना भाई। 1 1 कहाँ है? कि ये देखो इसके 2 एलिमेंट और इसका 1 एलिमेंट से रिलेटेड है, तो ये मैनी 1 हो गया, मैनी 1 एंड नॉट ऑन टू, यानी मैनी 1 इनटू, मैनी 1 इनटू। तो ये फंक्शन मैनी 1 इनटू हो गई। अब देखते हैं 5th। तो ये फंक्शन तो लगती है क्योंकि डोमेन के सारे एलिमेंट कवर हो गए, लेकिन ये ऑन टू नहीं है, ये खाली रह गए। अब 1 1 है या मैनी 1? ये मैनी 1 है कि 1 और 2 की इमेज 12 है किलो की, तो ये मैनी 1 इनटू होगी, मैनी 1 इनटू, मैनी 1 इनटू। और 6th फंक्शन तो ये है, और हर एलिमेंट डिफरेंट एलिमेंट से रिलेटेड है, लेकिन ये खाली रह गया यहाँ, तो ये ऑन टू नहीं हुई, तो ये होगी 1 1 इनटू, 1 1 इनटू, 1 1 इनटू। तो बच्चों टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में काफ़ी नॉलेज हमने गेन कर लिया, और अगले लेक्चरों में हम इन्हीं का इस्तेमाल करेंगे, देखेंगे इन्हीं एस्पेक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। तो आज बस इतना ही करते हैं कि एग्जाम्पल भी लिए, और जो भी पॉसिबल टाइप्स ऑफ फंक्शंस थी वो हमने डिस्कस की। धन्यवाद। जय हिंद।